यस, कल के लेक्चर में हमने ये देखा था प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर के जो डिफरेंट फॉर्मूले हैं तो वो हमने प्रूव करके लिए थे, जैसा कि रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, and also the trajectory, equation of trajectory of the projectile, right? So आज हम आज के लेक्चर में वो कंटिन्यू भी करेंगे और उसका भी नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज अबाउट द सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो वो हम आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे। चलो फिर, तो यहाँ पे भी ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ द प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर हमने लास्ट टाइम जो देखा था तो उसमें से उसका जो समरी है, समरी, तो वो हम इस तरह से बता सकते हैं कि इफ सपोज वी हैव अ प्रोजेक्टाइल which is fired at some angle theta with the horizontal, then it travels along this curved path like this and just falls on the point away at some distance from the origin, right? So this distance here is called as the range of that projectile. This vertical, maximum vertical distance covered by the projectile is denoted by h, and it is called as the height of the projectile. And at the same time, the time taken by the projectile to move from this point to this point here, complete trajectory complete करने के लिए जो time लगता है उसको हम बोलते हैं the time of flight of the projectile, which is divided into two parts. One is called as the time of ascent and the second one is called as the time of descent, where time of ascent is going to be the time required for the projectile to move from this bottom point to the highest point here, and the time of descent is nothing but the time required for the projectile to move from the highest point to the lowest point once again here. Okay, so ये सब चीजें हैं। और ये भी हमने देखा था कि in case of the projectile, the formula for range of the projectile is simply, range of the projectile is given by a simple formula, that is x into tan theta minus gx square upon 2u square into cos square theta, बराबर है। तो ये फॉर्मूला हमने देखा था प्रोजेक्टाइल का जो ट्रैजेक्टरी होता है तो वो निकालने के लिए। चलो ठीक है, उसके बाद हमने रेंज का फॉर्मूला एक्सप्रेस किया था, सॉरी रेंज रेंज का नहीं, ये फॉर्मूला किसका था, ट्रैजेक्टरी का, मतलब वो y कोऑर्डिनेट आएगा ना यहाँ पे, ठीक से। तो द y कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन दिस प्रोजेक्टाइल हियर, सपोज यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट है p जिसके कोऑर्डिनेट्स मान लो x y x, y है, तो उस केस में इस पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स है तो वो निकालने के लिए उनके बीच में जो रिलेशनशिप है तो वो बनता है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ऑफ दैट प्रोजेक्टाइल। यस, देन वी हैव सीन द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल? इट इज गोइंग टू बी u स्क्वायर into sin 2 theta, that is divided by g, correct है? So this is the formula for range of projectile. Yes, then we have seen the formula for maximum height of the projectile, maximum height that is attained by this projectile, right, which is given by u square sin square theta upon 2g. See the difference? देखो ठीक से, यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है उसके अंदर नीचे 2g है, डिनोमिनेटर में दिख रहा है, और न्यूमरेटर में हम देख रहे हैं आराम से कि न्यूमरेटर के अंदर यहाँ पे u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, जबकि यहाँ पे u स्क्वायर साइन 2 थीटा है। Okay, that is the basic difference between these two here. Yes, that is to be remembered. नहीं तो गड़बड़ मत करो, नहीं तो इसका फॉर्मूला इसको नहीं और इसका फॉर्मूला इसको, ऐसा गड़बड़ मत करो बिल्कुल, ठीक है? So they are two different formulae and we have to remember them as it is. Okay, चलो ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला है वो तो हमको मिल गया इधर। और तीसरा क्या है? तीसरा हमने टाइम ऑफ फ्लाइट का भी फॉर्मूला देखा था। देखो टाइम ऑफ फ्लाइट, हाउ इट इज फाउंड आउट टू बी। So time of flight is going to be 2u sin theta upon g. That's it. So this is actually going to be the formula for time of flight. Remember, okay? And at the same time, time of ascent and time of descent can also be expressed
because we know that this time of ascent and time of descent are simply going to be half of this time of flight, and that's why just यहाँ से इसको अगर half कर देंगे तो ये 2 वहाँ पे नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा बस, that's it. So we can get this as u sin theta upon g, that's all. This is going to be the formula for time of ascent or time of descent. Okay, and then we will find out the formula for ओके और हमने इसके आगे जाके ये भी प्रूव किया था कि रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम व्हेन इट इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 45 डिग्री, करेक्ट है? तो जब उसको 45 डिग्री पे थ्रो करते हैं तभी हमको मैक्सिमम रेंज मिलता है. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट मैक्सिमम रेंज? ओके, तो मैक्सिमम रेंज का वैल्यू क्या होता है तो वो भी हम निकाल सकते हैं आराम से. यहाँ पे थीटा के बदले 45 डालने से हमको ये मिल जाएगा, देखो ठीक से. सो वी कैन फाइंड इट आउट. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वील जस्ट डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल एंड हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल. कैन वी, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन आर एंड एच? सी हियर. तो उसके लिए देखो यहाँ पे आर जो है, आर का फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी है जो कि यू स्क्वायर sin 2 theta, sorry, that is divided by g, करेक्ट है? और h का भी फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी है, h जो कि u स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, बराबर? यस. अभी अगर हम सपोज इन दोनों का अगर रेशियो लेते हैं, देखो ठीक से, if we take the ratio of these two, then we can be able to get the relationship between r and h. so r को डिवाइड करते हैं h से, तो r डिवाइडेड बाय h कितना आएगा देखो, तो वो बनेगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा दैट इज टू बी डिवाइड बाय g which is upon u square sin square theta and that is again divided by g, so that here we can see g can get cancelled, u square also can get cancelled, so that what we are left with is r upon h is equal to, तो न्यूमरेटर में क्या आएगा, sin 2 theta and divided by sin square theta. अभी इसमें साइन साइन कैंसिल मत करो, कोई कोई लोग तो वो भी करते हैं. तो व्हाट विल हैपन हियर इज r upon h will actually be equal to, अच्छा, sin 2 theta can be expressed as 2 sin theta into cos theta as we know in from the trigonometry. ट्रिग्नोमेट्री में हमको पता है ऑलरेडी कि sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा into cos थीटा and that is to be divided by sin square थीटा. ओके, और एक 2 बचा हुआ है ना, यस, ये 2 जो है यहाँ पे, ये देखो हाइट का जो मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला है उसके अंदर नीचे 2 है कि नहीं, तो वो 2 यहाँ पे आएगा और g कैंसिल होने के बाद ये 2 ऊपर चला जाएगा, जिसके कारण यहाँ पे वो इधर अपीयर करेगा 2 sin 2 थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा, ऐसे बनेगा. और जबकि सॉरी, तो यहाँ पे फिर क्या आएगा, 4 आएगा कि नहीं, देखो ठीक से, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 2 था, बराबर? और ये साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला है वो क्या बन रहा है, 2 sin थीटा cos थीटा बन रहा है, इसलिए फिर ये 2 और 2 मिलके 4 बनने वाला है. चलो नेक्स्ट स्टेप में वो कर देंगे. एंड दिस sin स्क्वायर थीटा कैन बी एक्सप्रेस्ड एज व्हाट, sin स्क्वायर थीटा मतलब sin थीटा इनटू sin थीटा, so that we can cancel 1 sin theta straight away, and what we are left with is simply r by h is equal to 2 into 2 4, and here it will be sin theta, नहीं सॉरी, ऊपर क्या बचेगा, cos थीटा बच रहा है, देखो cos थीटा, और नीचे क्या बच रहा है, sin थीटा बच रहा है, करेक्ट है? so that we can say that r is going to be equal to 4 into h into cot theta, बोल सकते हैं ऐसा, yes, cot theta, because we know that cos theta upon sin theta is going to be cot theta. So this is actually the relationship between r and h. The range and maximum height are just connected to each other by using this relationship, remember. Okay, one more thing is to remember here is there is a relationship between h and t also. देखो यहाँ पे h और t, इन दोनों के बीच में भी रिलेशनशिप है. क्या रिलेशनशिप है वो, तो देखो ठीक से, we can derive
that also in just 2 minutes, because we have this h given here, u square sin square theta upon 2g, right? And t is already given here. So अब यहाँ पे सिंपली h और t का रेशियो लेने से कुछ फायदा नहीं होगा, बट क्या करना है हमको, h तो चलो ठीक है, h is already given here which is u square sin square theta upon 2g, okay? But here t is going to be 2u sin theta upon g. अगर हम इन दोनों का रेशियो ले लेंगे भी तो भी क्या होगा यहाँ पे कि u जो है वो u स्क्वायर है यहाँ पे, और यहाँ पे सिर्फ u है। इवन यहाँ पे हम देख रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा है, जबकि यहाँ पे सिर्फ साइन थीटा है दिख रहा है। तो इट गिव्स अस एन इंट्यूशन दैट वी हैव टू स्क्वायर दिस इक्वेशन हियर। ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट का जो इक्वेशन है कि नहीं, तो उसको हमको स्क्वायर करना होगा। ओके, तो इफ वी जस्ट स्क्वायर दिस टाइम ऑफ फ्लाइट हियर देन वी गेट दिस t स्क्वायर which is going to be equal to, तो देखो t का स्क्वायर क्या होगा, u 2u sin थीटा अपॉन g का होल स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर क्या बन गया 4 इंटू u का स्क्वायर मतलब ही u स्क्वायर, ओके, इंटू साइन थीटा का होल स्क्वायर मतलब ही क्या होगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, एंड दैट इज टू बी डिवाइडेड बाय g का स्क्वायर मतलब ही वो बन गया g स्क्वायर। करेक्ट है? यस। अभी हमको क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड करना है। Let us divide these two equations now. So h divided by t square. What happens here is, so देखो u square sin square theta upon 2g, and that is to be whole divided by this, right? ये t square से हमको इसको डिवाइड करना है, बट t square से डिवाइड करना मतलब उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करने के बराबर होता है। So let us multiply this by reciprocal of that. That is g square upon 4u square into sin square theta, okay? So अभी यहाँ पे अगर इसको सिंप्लीफाई करो तो हमको मिल रहा है u स्क्वायर कैंसल, राइट? अभी इसमें से g जो है वो g एक कैंसिल हो जाएगा और एक बचेगा, देखो ठीक से, तो यहाँ पे एक g बचा हुआ है, और साइन स्क्वायर थीटा तो पूरा ही जाएगा, है कि नहीं? तो बचता क्या है देखो ठीक से, तो ये हमको मिल रहा है h अपॉन टी स्क्वायर इज गोइंग टू बी एक्चुअली इक्वल टू, अब देखो ये 2 और ये 4 दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या बन रहा है 8 बनेगा, और ये g यहाँ पे बचा हुआ है ऑलरेडी, तो इसलिए हमको ये मिलेगा फाइनली 1/8 ऑफ g, एंड एक्चुअली इफ यू सिंप्लीफाई दिस स्टिल फर्दर देन वी गेट दिस एज h इज इक्वल टू 1/8 ऑफ g स्क्वायर, sorry, g into t square. Okay, so this is actually going to be the relationship between the maximum height attained by the projectile and time of flight of that projectile. Okay, so time of flight and maximum height are just connected with each other by using this equation, remember. और बाकी बचा तीसरा कि r और t के बीच में क्या रिलेशनशिप है। So how can we find it out? r and t. So देखो यहाँ पे r कितना है, देखो u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, और t क्या है देखो 2u साइन थीटा अपॉन g. yes, so what can we say is r r is going to be u square sin 2 theta upon g, which is, and t is actually going to be 2u sin theta upon g again, so that if we take the ratio of these two, no? So r divided by t अगर करेंगे तो क्या मिलेगा देखो, तो r डिवाइड बाय t करने का मतलब है यहाँ पे इस t का रेसिप्रोकल करके उसको मल्टीप्लाई करना होगा, तो इसलिए यहाँ पे आएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा एंड दैट इज डिवाइडेड बाय g, एंड इट इज मल्टीप्लाइड बाय द रेसिप्रोकल ऑफ दिस t हियर। इस t का रेसिप्रोकल क्या बनेगा देखो ठीक से, तो वो बनेगा g अपॉन 2u sin थीटा, करेक्ट है? Okay, so g gets cancelled here, u gets cancelled once, and we'll be left with r upon t, which is equal to, यहाँ पे अभी u स्क्वायर में से एक u बचा हुआ है कि नहीं,
तो u यहाँ पे एक एज इट इज डाल देंगे, और ये जो sin 2 थीटा है तो उसको हम डबल एंगल फॉर्मूला यूज करके एक्सपांड करेंगे, जो बनेगा 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, करेक्ट है, एंड दैट इज होल डिवाइडेड बाय this 2 sin theta, correct? So this is 2 sin theta here, right? So 2 gets cancelled and sin theta also gets cancelled, and what we are left with is r by t is equal to u cos theta, and hence we can express theta as r is equal to u cos theta into capital T. So this is actually the relationship between the range of the projectile and the time of flight, you can see. Okay, so range of projectile and time of flight, they are connected to each other by using this equation. This equation can also be written as r is equal to ux into capital T, just because u cos theta stands for ux, no doubt. u cos theta मतलब ही क्या होता है, ux होता है, इसलिए ux मतलब ही horizontal component of velocity. So ये भी एक इक्वेशन हमको मिल गया है, yes, no doubt. And at the same time, if theta is 45, देखो इधर ठीक से, if theta is 45 डिग्री, तो थीटा अगर 45 है तो क्या होता है, cot 45 कितना बनता है पता है तुमको, cot 45 becomes 1, and that's why this equation gets modified as r is equal to 4h. ये भी अच्छी तरह से याद रख लो, if theta is 45 then r becomes equal to 4 times of h. Okay, it can be proved from this equation only, क्योंकि थीटा अगर 45 है तो कॉट थीटा क्या बन रहा है, 1 बन रहा है, और अगर कॉट थीटा 1 बन गया तो 4h into 1 becomes 4h only, and hence we can say that the range is equal to 4 times of the maximum height only when theta becomes equal to 45. ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको अच्छी तरह से याद रखो, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे एमसीक्यू स्पेशली पूछ जाते हैं. ओके, याद रखो ठीक से. और एक बात जो हमारे पास ट्रेजेक्टरी का जो इक्वेशन था, देखो ठीक से, ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू x इंटू tan थीटा माइनस हाफ इंटू जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, करेक्ट है, ठीक है. अभी इसमें से ना अगर हम सपोज x इंटू tan थीटा को अगर कॉमन लेते हैं, देखो ठीक से, we have taken this x into tan theta common so that it can be taken out from the bracket, so that 1 will be left inside in the first, from the first term, minus. अभी आप कहेंगे यहाँ पे x tan theta तो है ही नहीं, हमने कैसे कॉमन लिया, तो एक्चुअली x तो है ऑलरेडी, तो वो तो हमने कॉमन ले लिया, नो डाउट, बट tan थीटा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उससे उसको डिवाइड कर देंगे, बस खत्म. तो यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या आएगा, gx आएगा एज इट इज, और नीचे आ जाएगा 2 u स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा. ओके, क्या किया हमने, x tan थीटा को कॉमन लेने के लिए, तो यहां से तो पूरा x का x tan थीटा ही कॉमन चला गया, तो इसलिए यहाँ पे अंदर ब्रैकेट में 1 बचा, नो डाउट, बट ये x tan थीटा में से x जो है तो वो ऑलरेडी प्रेजेंट है, यहाँ पे देखो x स्क्वायर प्रेजेंट है, उसमें से एक x हमने यहाँ पे ले लिया बाहर, जिसकी वजह से यहाँ पे एक ही x बचा हुआ है, राइट है, ठीक है. बट अभी यहाँ पे हम tan थीटा तो है नहीं, तो हमने क्या किया, ऐसा समझ लो कि हमने इसको tan थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, ओके, जिसके कारण अब यहाँ पे ये tan थीटा, ये x tan थीटा जो है वो चला गया बाहर, और जो बचा हुआ जो टर्म है तो वो gx ऊपर में, और नीचे 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसके साथ ये tan थीटा भी बचा हुआ है, देखो ठीक से यहाँ पे ये जो tan थीटा है तो वो वही है जो हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, उसमें से ऊपर का जो है वो तो बाहर चला गया, ये देखो इधर है, बाकी जो नीचे का जो tan थीटा है वो बचा रहेगा इसके साथ यहाँ पे डिनोमिनेटर में. चलो ठीक है, अभी अगर इसको सॉल्व करते हो आगे तो क्या बनेगा, देखो, तो y कैन बी रिटर्न टू बी इक्वल टू x इंटू tan थीटा एज इट इज इंटू ब्रैकेट में अभी यहाँ पे 1 माइनस, तो gx स्क्वायर gx एज इट इज अपॉन 2u स्क्वायर अगेन एज इट इज इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, जिसको हम लिख सकते हैं
cos थीटा इंटू cos थीटा बराबर, और tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, sin थीटा अपॉन cos थीटा, करेक्ट है। जिसमें से अभी देखो cos थीटा एक कैंसिल हो जाएगा और एक बचेगा, और इससे भी आगे जाके y इज इक्वल टू x tan थीटा kept as it is, and here it is going to be 1 minus यहाँ पे gx as it is, and what we are left with here is u square into यहाँ पे आएगा 2 cos थीटा into sin थीटा बराबर है। अभी just see carefully what is this 2 sin theta cos theta here, 2 sin theta cos theta मतलब क्या बनता है, sin 2 theta बनता है बराबर। So if we just replace it by that, then we get this y is equal to x into tan theta into bracket में 1 minus gx as it is, and that is to be divided by what is this u square into sin 2 theta, okay। But if you recall that r का फॉर्मूला क्या है, range of projectile is what is it equal to, it is u square sin 2 theta upon g, isn't it just reciprocal of this part here। ये देखो यहाँ पे x को बाजू में रखो, बाकी ये जो है उसका रेसिप्रोकल ही तो है कि नहीं ये, तो इसलिए फिर इसको अगर हम उल्टा करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, g अपॉन u square sin 2 theta can be written to be equal to 1 upon r, right। And since it's 1 upon r, if it is put here, then we can get it in the next step, that is y is equal to x tan theta into bracket 1 minus gx। अच्छा, ये जो पूरा पार्ट है वो 1 upon r बनने जा रहा है, तो इसलिए फिर 1 upon r इसको हम लिख देंगे और x को एज इट इज लिख देंगे, तो ये 1 upon r into x मतलब क्या बनता है, x upon r बनता है। So finally we are going to get that x into tan theta in bracket 1 minus x by r। देखो इतना सिंपल इक्वेशन हमको मिल गया। So this is again another equation for trajectory in terms of range of projectile, okay। तो ट्रैजेक्टरी का जो इक्वेशन है तो वो हम ऐसा भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, इन टर्म्स ऑफ रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। देखो यहाँ पे रेंज आ गया कि नहीं डिनोमिनेटर में, सो यू हैव एक्सप्रेस्ड इट इन टर्म्स ऑफ रेंज, ओके ठीक है। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस। ओके, एनी डाउट टू एनीबॉडी अप टू दिस? अभी तक जितना भी हमने किया उसके अंदर कुछ डाउट है? यस आई एम आस्किंग एनी डाउट? सारे स्टेप्स समझे सबको? okay, so just remember all this formulae, yes। so चलो फटाफट ये फॉर्मूले सारे जो है वो लर्न करो ठीक से, क्योंकि इनके ऊपर ही न्यूमेरिकल्स बेस्ड है। देखो ये 3 फॉर्मूले जो है ना वो तो तुमको बिल्कुल बाय हार्ट होने चाहिए। यस, आर का फॉर्मूला जो है आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, दूसरा मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला, और तीसरा जो है वो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला। उससे ही टाइम ऑफ असेंट टाइम ऑफ डिसेंट भी मिल जाता है, और ये ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन जो है वो भी हमको लर्न होना चाहिए। एंड आर और टी के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है वो भी हमको पता होना चाहिए, और वो यू कॉस थीटा को अगर हम यू एक्स से रिप्लेस करेंगे तभी भी चलता है, तो वो भी हमको पता होना चाहिए। और एट द सेम टाइम ये जो है आर और एच के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो भी हमको पता होना चाहिए बिल्कुल, और ऑल्सो दिस एच एंड टी के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो भी हमको बिल्कुल पता होना चाहिए, सीधी बात।
and when theta is 45 then cot theta becomes 1 and hence r becomes equal to 4 times of h. ये भी हमको पता होना चाहिए. Yes, last part and सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है कि ये भी हमको पता होना चाहिए कि जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है, so how can it be modified so as to include r in it. ओके तो उसमें r लाने के लिए क्या हमको करना पड़ेगा. तो देखो उसमें से हमने x tan थीटा कॉमन निकाला, तो x tan थीटा कॉमन निकालने से यहाँ पे ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म में तो 1 आ गया और माइनस इधर से x tan थीटा कॉमन निकालने के लिए हमने tan थीटा को मल्टीप्लाई और इधर डिवाइड भी किया. We have multiplied divide by tan theta so as to take this x tan theta common from this whole thing, so that we get this x tan theta common and 1 minus gx upon 2u square cos square theta tan theta in the denominator. And if we replace this tan theta by sin theta upon cos theta, then we can be able to find just cancel this cos theta out so as to get this gx upon u square into 2 cos theta sin theta. But we already know that 2 sin theta cos theta is called as sin 2 theta. So we can say that just gx upon u square sin 2 theta ये हमको मिलता है. बट ऑलरेडी हमको पता है कि रेंज का जो फॉर्मूला है वो होता है u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g. तो g अपॉन u स्क्वायर sin 2 थीटा जो है वो एक्चुअली 1 अपॉन r बनेगा और उसको अगर हम यहाँ पे डाल देंगे तो हमको ये मिल जाएगा y इक्वल टू x tan थीटा इंटू ब्रैकेट 1 माइनस x बाई r. ओके okay, so just take a numerical based on this. अच्छा जस्ट टेल मी ये जो पेन का जो थिकनेस है वो ज्यादा कम तो नहीं हो रहा है ना, जो आपको मोबाइल पे दिखने में तकलीफ हो रहा है, ऐसा कुछ है? So I will continue to use this thickness, otherwise I can increase the thickness of ये भी हम यूज कर सकते हैं आराम से, जो उससे थोड़ा थिक है. चलो ठीक है फिर, तो लेट अस टेक द एग्जांपल. टेक अ क्वेश्चन. ओके जस्ट yes, just take down this question.
Okay, can you read the question? See here, it tells us that a ceiling, the ceiling of a long hall is 25 meter high. What is the maximum horizontal distance that the ball thrown with the speed of 40 meter per second can go without hitting the ceiling of the ball, ceiling of the hall? Okay, देखो ठीक से यहाँ पे क्या पूछा है उन्होंने. Yes, we have a ceiling of a hall 25 meter high. मतलब क्या कि ये सपोज हॉल है हमारे पास. ओके, इसका जो हाइट है तो वो कितना दिया हुआ है, 25 मीटर दिया हुआ है, बराबर. ओके, एंड व्हाट इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट द बॉल थ्रोन विद द स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड कैन गो विदाउट हिटिंग द सीलिंग ऑफ द हॉल. तो मतलब अगर सपोज हम 40 मीटर पर सेकेंड से अगर एक बॉल थ्रो करेंगे इस तरह से, तो इस सीलिंग को टच किए बिना कितना डिस्टेंस वो मैक्सिमम जा सकता है बॉल. ठीक है, ताकि वो सीलिंग को टच नहीं करना जरूरी है. ठीक है, सीलिंग को टच नहीं होना चाहिए. तो ऐसे केस में कितना मैक्सिमम डिस्टेंस तक वो जा सकता है. तो देखो ये सपोज ऐसा डायग्राम है, मतलब चलो ठीक है, थोड़ा डायग्राम जो है वो हम ऐसा करेंगे. ओके, सपोज ये है और यहाँ से हम उसको थ्रो करने वाले हैं 40 मीटर पर सेकेंड स्पीड से. सो वी वांट टू फाइंड आउट विदाउट हिटिंग द सीलिंग, अगर हमको उसको थ्रो करना है तो मैक्सिमम कितना डिस्टेंस वो कवर कर पाएगा. ओके, तो सोचो ठीक से. इसका मतलब इस प्रोजेक्टाइल का जो मैक्सिमम हाइट है वो कितना दिया हुआ है, इनडायरेक्टली 25 मीटर दिया हुआ है. ये समझा बात ठीक से. द हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज एक्चुअली गिवन टू बी 25 मीटर. ओके, and also that the initial speed is given here. See here, it's 40 meter per second, right? So maximum height दिया हुआ है 40 मीटर, सॉरी 25 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर, और u दिया हुआ है 40 मीटर पर सेकेंड. and also we want to find out the maximum horizontal distance, right? so maximum horizontal distance कभी मिलता है हमको, किस एंगल पे थ्रो करने से हमको मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मिलता है. याद है अभी अभी हमने देखा था 45 डिग्री है कि नहीं. तो 45 डिग्री पे हमको थ्रो करना पड़ेगा क्योंकि वी वांट द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, राइट है. तो इसलिए थीटा 45 जो है वो हिडन इंफॉर्मेशन है इसके अंदर दिया हुआ. देखो इट इज हिडन इन दिस वर्ड मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, राइट. सो जस्ट लेट अस यूज दिस हियर एंड ट्राई टू फाइंड इट आउट. तो एच का फॉर्मूला क्या है तुमको पता है. अच्छा, और एक बात कि एच और आर के बीच में रिलेशनशिप क्या है, उससे तो हमको डायरेक्ट मिल जाएगा आंसर. देखो r is equal to 4 times of h when h is 45, sorry theta is 45. So we can say that r is actually going to be 4 times of h. h मतलब कितना है यहाँ पे 25, right? And hence it will be 100 actually. That's all. So ये सिंपल सी बात हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे. बट चलो ठीक है, अगर हम ये u को यूज करके अगर सॉल्व करते हैं इसको तो हमको मिलेगा h का वैल्यू कितना है यहाँ पे. इट इज एक्चुअली गोइंग टू बी u square sin square theta upon 2g, right? yes. and then h जो है, h तो हमको मिल गया, चलो ठीक है. बट इससे
u तो दिया हुआ है यहाँ पे और g भी हमको पता है ऑलरेडी, तो उससे हम साइन थीटा निकाल के देंगे. यस, सो इट विल बी 25 इज इक्वल टू u स्क्वायर, u के बजाय डाल देंगे 40, तो 40 का स्क्वायर एंड दैट इज मल्टीप्लाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, so that 2 into g मतलब 10. Yes, so if we simplify this further, then we can transfer this 2 in that side and 10 also in that side, so as to get this as 15 to 10 मतलब 500, right? So this is 500 which is equal to 40 का square जो बनता है 1600 and that is multiplied by sin square theta, बराबर, जिससे हमको मिल रहा है ये दो zeros cancel and what we are left with is sin square theta is equal to 5 by 16, okay, which gives sin theta as well. Okay, sin square theta तो हमको मिल गया, चलो ठीक है. How can we get this cos square theta here? देखो इससे हमको क्या मिलता है, sin theta मिल जाता है. देखो sin theta is actually going to be √5 upon 4, correct है? Yes. Then cos theta can be found out by using the trigonometric relationship, that is cos square theta is equal to 1 minus sin square theta, बराबर है? ठीक है. नहीं, ये एक्चुअली नहीं है, दिस इज एक्चुअली रॉन्ग. ओके, तो cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमको यहाँ पे थीटा इक्वल टू 45 दिया नहीं है ना, ये जब थीटा इक्वल टू 45 होता है तभी होता है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ दिया नहीं है. ओके, तो चलो ठीक है, cos स्क्वायर थीटा इज गोइंग टू बी एक्चुअली इक्वल टू 1 minus sin square theta, where sin square theta is this 5 by 16, right? If we replace it by that here, then we get this 5 upon 16, which happens to be cos square theta is equal to 16 minus 5 by 16, मतलब कितना हो गया वो 11 by 16 हो गया. और इसकी वजह से cos theta क्या बनेगा एक्चुअली, so we can say that cos theta will actually become equal to √11 by 4, correct? And then we will be able to find out the range of this projectile. तो रेंज के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, जो कि u स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा अपॉन g, करेक्ट है, जिसको हम लिख सकते हैं आराम से u स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं, बराबर, and that is to be divided by g as it is, so that this will be actually equal to so range will actually be equal to u square, u कितना है यहाँ पे 40 है, बराबर है ना, तो उसको हम डाल देंगे 40, तो ये 40 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 2 इंटू साइन थीटा, हाउ मच इट इज √5 by 4, रिमेंबर. Okay, and what is cos theta here, it is √11 by 4, yes, and that is to be whole divided by g once again, that is 10. So if we find it out, then we get this r is equal to 40 का स्क्वायर कितना हो रहा है 1600, right? So this is 1600 into what is this 2 into √5 into √11 comes out to be root of 55, okay, and that is divided by 4 4s are 16, yes, and that is to be divided by 10, okay. So this 16 just cancels with this 1600, leaving behind 100 here, and that 100 also just reduces with 10, leaving behind 10 there, and 10 into 2 into √5, that means it will be 20 √25. So √25 can be found out. So what is the √25? √55 कितना होता है,
it is 7.416, and that is multiplied by 20 gives 148.32. check. So it's going to be 138.32. Okay, so this is going to be the answer. Sorry, 148.32. Okay, this will be the correct answer. चलो ठीक है. अच्छा, एक करो, do it yourself now. Find the equation of projectile thrown with an angle 30 degree and whose range is 100 meter. See here, we have to find out the equation of a projectile which is thrown with an angle 30 degree and whose range is 100 meter. मतलब एक ऐसा प्रोजेक्टाइल है जो हमने 30 डिग्री पे फायर किया और वो सीधा जाके 100 मीटर दूर जाके गिर गया. तो ये 100 मीटर क्या दिया हुआ है, उसका रेंज दिया हुआ है, राइट. और उसका जो एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ वो 30 डिग्री वो भी दिया हुआ है. तो उससे उसका इक्वेशन कैसे मिलेगा हमको? यस, एनीबॉडी? इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल के लिए अभी अभी हमने और एक फॉर्म देखा, और एक फॉर्मूला देखा, विच इज x tan थीटा इंटू 1 माइनस x upon r. याद है? So if we use it here, then we get this y equal to x into tan 30, okay, into bracket में 1 minus x upon 100, and hence it becomes y is equal to x into tan 30 कितना होता है? We know that it is 1 by root 3, correct है? Into bracket 1 minus x by 100, so that it can be written as y is equal to x by root 3 into 1 minus x by 100. That's it. So this is the equation of projectile. That's all. We have found it out. Okay. So in this way, we can find out the equation of any projectile if its range is known and its angle of projection is also known. Okay. Very good. Yes, very good. चलो ठीक है, फिर यहाँ तक हम रुकते हैं. अभी यहाँ पे जो है तुम्हारा प्रोजेक्टाइल मोशन जो है, तो ये सेक्शन यहाँ पे खत्म होता है. प्रोजेक्टाइल मोशन, हाँ, ये जबकि चैप्टर का नाम क्या है? मोशन इन प्लेन है. मोशन इन प्लेन इज गोइंग टू बी अ ब्रॉड कंसेप्ट which includes the motion, projectile motion also, and at the same time circular motion also. Uniform circular motion is also the part of motion in plane only, which we have to start in the next lecture. तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में स्टडी करना है. ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने प्रोजेक्टाइल मोशन यहाँ पे खत्म किया, which is the part of motion in plane. In the next lecture we'll see
uniform circular motion. Okay, so thank you all of you. Bye bye.